خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب 25 اراکین آج حلف نہ اٹھا سکے۔ اسمبلی اجلاس سے پی ٹی آئی کے اراکین غائب، صرف 2 ایم پی آئے۔ حکومتی رکن شیر علی آفریدی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ اسپیکر نے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس 24 جولائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت اسمبلی کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ 1.5 سال سے سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں۔ یہاں پر سیاسی نابالغ بیٹھے ہیں۔ آج جو کچھ ہوا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ مخصوص نشستوں پر حلف برداری کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم عدالت جائیں گے، چیف جسٹس سے درخواست کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے عالمی شہرت یافتہ برطانوی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں 2 اعزازات اپنے نام کر لیے۔ مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے فخر پاکستان JF-17C بلاک 3 طیارے کو اسپرٹ آف دی مین ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کر کے کنکورس ڈی ایلیگنس ٹرافی کا اعزاز حاصل کیا۔ قومی پرچم بلند رکھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی پہچان رہی ہے۔ اعلیٰ اعزازات، تکنیکی مہارت اور بہترین معیار کے حصول کی لگن کی واضح دلیل ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کے دستے کو مبارکباد۔ پاک فضائیہ نے مئی میں دشمن کے طیارے گرا کر پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ پاک فضائیہ کی 21ویں صدی کی جنگ میں بہترین کارکردگی کی مثال رہتی دنیا تک دی جائے گی۔ یہ کامیابی عکاس ہے کہ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاک فضائیہ کو رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور 1 انفو موبائل اپلیکیشن کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ایپ سے ایمرجنسی شکایات کا اندراج ہو سکے گا۔ محسن نقوی نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت بھی کی۔ خواتین اور کمزور طبقات کی مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز کو مزید فعال بنایا جائے۔ سرویلنس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور AI سے لیس کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ ڈیجیٹل معیشت، تیز انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے آئی ٹی شعبے میں انقلابی پیش رفت۔ SIFC اور وزارت IT کے مشترکہ کوششوں سے آئی ٹی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ۔ آئی ٹی برآمدات $3.8 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان 2030 تک $15 ارب کی آئی ٹی برآمدات کے ہدف کے حصول کی جانب گامزن۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اپنا چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کی فراہمی۔ بینک آف پنجاب اور محکمہ ہاؤسنگ میں معاہدہ طے پا گیا۔ رواں مالی سال میں گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضوں کی فائنانسنگ بینک آف پنجاب ہی کرے گا۔ 10 ارب سے زائد رقم درخواست گزاروں میں اگلے ماہ تک تقسیم کی جائے گی۔ وزیر برائے ہاؤسنگ پنجاب۔ NDMA کا 25 جولائی تک بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا نیا الرٹ۔ خیبر پختونخوا میں وقفے سے بارشیں متوقع۔ دریائے کابل، سوات، پنچکوڑا، کلپنی نالہ اور بارہ نالہ میں طغیانی کا خطرہ۔ پہاڑی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان اور دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ راول ڈیم اسلام آباد میں پانی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پانی کی سطح 1748 فٹ ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ سپل ویز کھولنے سے قبل ملحقہ آبادی اور محلوں کی مساجد میں اعلانات کرائے گئے۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے کے نالوں میں طغیانی اور دریائے کٹاؤ۔ سب ڈویژن مشابروم میں کھڑی فصلوں اور پھلدار اور غیر پھلدار درختوں کا شدید نقصان۔ ہلدی نالے میں طغیانی سے حفاظتی بند بھی تیز بہاؤ میں بہہ گئے۔ قریبی آبادیوں کو شدید خطرات لاحق۔ تلس گاؤں میں دریائی کٹاؤ سے زرعی زمینیں متاثر۔
सीनू और थग्स नालों में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चकवाल, सैलाबी रैली से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। जाम भक अफराद के लिए 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद का ऐलान। सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला की ढमन पुल की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कच्चे घरों में मकीन खानदानों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम की जाए। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भरपूर तैयारी की जाए। मरियम नवाज। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू में कामयाब ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में डीपीओ मोहम्मद खालिद और एसएचओ नबी खान जख्मी। सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म की हंगू में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। जख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इरादा। मोदी राज में हिंदुत्व गुंडों और अकलियतों और कारोबार पर वार। हिंदुत्व इंतहा पसंदी ने मजहब को तशद्दुद और दहशत का नया हथियार बना लिया। भारतीय रियासत यूपी में हिंदुत्व गुंडों की जुनूनियत ने रोजगार और मईशत को रौंद डाला। KFC पर हंगामा खेज हमले से इमलाक तबाह। जान के खौफ, अमले को मजबूरन दुकान बंद करना पड़ी। भारत में अकलियतों के बाद बैन अल-अक़वामी ब्रांड्स भी गैर महफूज करार। भारत में बीजेपी, आरएसएस और शिवसेना जैसी तंजीमों के जरिए हिंदुत्व नजरिए का राज। हिंदुत्व सियासी मंसूबे का मकसद अक्सरियती हिंदू राष्ट्र की तश्कील है। भारतीय वेबसाइट स्क्रॉल इन की हिंदुत्व और सहूनियत में मुमासलत के हवाले से आज़ाद ईसा की किताब का तज्जिया जारी। हिंदुत्व और सहूनियत का मुश्तरका मकसद दूसरे मज़ाहिब की शिनाख्त को मिटाना और एक कौम बनाना है। स्क्रॉल इन में इंकशाफ। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इससे होने बर्बरियत। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी और फायरिंग। 116 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में खुराक के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल। तेल अवीव में यरगमालियों के अहल खाना का अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अमरीकी सदर ट्रंप से जंगबंदी मुआहदा और यरगमालियों की वापसी की कोशिशों का मुतालबा। वियतनाम में सयाहों की कश्ती डूबने से 34 अफराद हलाक, 8 ताहाल लापता। कश्ती में अमले के 5 अरकान समेत 53 अफराद सवार थे। 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वाकया वियतनाम के मशहूर सयाहती इलाके हालुंग वे में पेश आया। खराब मौसम के बायस कश्ती डूबने का वाकया पेश आया। कश्ती पर सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक दारुल हुकूमत हनोई से था। थाईलैंड में एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। आसाब शिकन फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हरा दिया। इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान अंडर 16 टीम को चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज। मुकाबला शाम 5 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दूसरा मैच 22 और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल। तमाम मुकाबले शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान भारत मैच मनसूख। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी शाहिद आफरीदी भारतीयों के आसाब पर सवार। बूम बूम के डर से यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, शेखर धवन और युवराज सिंह का खेलने से इनकार। शायकीन क्रिकेट का शदीद मायूसी और भारतीय रवैये पर नाराजगी का इजहार। खेल में सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। Lionel Messi, what a ball! Here's Alba shooting, tie game! Lionel Messi again. Alba poked in. This time
अमेरिका में मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी की न्यूयॉर्क रेड बुल्स को शिकस्त। लियोनेल मेसी की टीम ने न्यूयॉर्क को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मेसी और टेरेस्को सिग्विया के 2-2 गोल। To work it across. Messi again. Oh my! Suarez. Lionel Messi. What a ball. Here's Alba shooting. Tie game. Lionel Messi. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 25 अरकान आज हलफ नहीं उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास से पीटीआई के अरकान गायब रहे, सिर्फ 2 एमपी इजलास में आए। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की, जिस पर स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1.5 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, आइनी काम में ताख़ीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। हम अदालत जाएंगे, चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात असेंबली के साथ खिलवाड़ कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज जो कुछ हुआ है, ये कहाँ की जमहूरियत है? यहाँ पर सियासी नाबालग बैठे हुए हैं। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में 2 एजाज जीत लिए। मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाइया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में स्पिरिट ऑफ द मंथ ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिए गए। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। JF-17C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे C-130 को कॉन्कर डी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ज़ाइया के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना आला महारत और उसके तैयारों के नफीस पेंट स्कीमों को मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ज़ाइया के सरबराहों ने बेहद सराहा। इस शानदार कामयाबी पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फ़ज़ाइया के दस्ते को मुबारकबाद दी और कहा कि कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फ़ज़ाइया की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि ये आला एजाज़ात हासिल करना हमारी पेशेवराना सलाहियत, तकनीकी महारत और आला मयार के हुसूल के लगन की वाज़ेह दलील है। आलमी सतह पर इस कामयाबी ने पाकिस्तान के एविएशन शोबे को फ़ख्र से हमकिनार किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो जैसे मोतबर फ़ज़ाई शो में ये कामयाबी पाक फ़ज़ाइया की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और पायलट्स और टेक्नीशियंस की पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फ़ज़ाइया के अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद देते हुए सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक C और C-130 हरकुलिस को शानदार कारकर्दगी पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत, पायलट्स और टेक्नीशियंस की पेशावराना सलाहियत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियाँ इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना सलाहियतों की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फ़ज़ाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों को आलमी एजाज़ात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने बैनुल अक़वामी शो 2 बड़ी ट्रॉफियाँ जीत कर तारीख रकम कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये कामयाबी पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत, जदीद फ़ज़ाई तैयारी और आलमी मयार की तरबियत का मुंह बोलता सबूत है।
उन्होंने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहते हुए कहा कि उनकी वलवला अंगेज क़यादत में PAF ने दुनिया को एक बार फिर ये बावर करा दिया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ हर मैदान में तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन के फ़ज़ाई अज़ाइम खाक में मिलाने वाली फ़ज़ाइया ने अब आलमी सतह पर भी अपनी सबकत मनवा ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वहाँ ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी उनके हमरा थे। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में हुकूमत के अज़्म का मज़हर है। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए उन पर जोर दिया कि वो मज़ीद मेहनत और लगन से काम करें और अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी में एक अहम इजलास की सदारत भी की, जिसमें उन्होंने हिदायत दी कि इस्लामाबाद को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए सेफ सिटी मनसूबे को मॉडल के तौर पर अपनाया जाए। उनका कहना था कि सर्वेलेंस निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI से लैस किया जाए और सेफ सिटी इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटीज़ से मुंसलिक करने पर भी काम किया जाए ताकि डाटा शेयरिंग में बेहतरी आए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने वज़ीर दाखिला को सेफ सिटी मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के मुताबिक फिल वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों को 3100 कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि इस निज़ाम को मज़ीद वसअत देने के लिए मज़ीद 3100 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन खास तौर पर ख़वातीन के लिए कायम किया गया है और ख़वातीन की मुआवनत के लिए हेल्पलाइन 1815 मुख्तस की गई है। इस हेल्पलाइन पर काम करने वाला तमाम अमला कॉल टेकर, कॉल रिस्पॉन्डर और तफ्तीशी अफसरान ख़वातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल हैं। जिला हंगू के इलाके शनावाड़ी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोआबा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने खुफिया इतला पर शनावाड़ी के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 9 दहशतगर्द मारे गए। जख्मी होने वालों में DPO हंगू खालिद खान, SHO दोआबा नबी खान शामिल हैं। सदर ममलकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म ने हंगू ऑपरेशन में 9 खारजियों को दहशतगर्दों को हलाकत पर पुलिस को शाबाश देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की बेकुनी के लिए कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। सदर ममलकत ने ज़ख्मी DPO मोहम्मद खालिद और SHO नबी खान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। और IT बरामदात में तारीखी इजाफा, डिजिटल मईशत की जानिब इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC और वजारत IT की मुश्तरका कोशिशों से IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। माली साल 2025 के अख्ताम पर IT बरामदात 3.8 अरब डॉलर के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ITES और फ्रीलांसर बरामदात में 18% इजाफा होने से पाकिस्तान की आलमी शनाख्त मुस्तहकम हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत वजारत IT की जाम हिकमत अमली ने IT बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन बनाया। वजारत IT की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने, टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और पॉलिसी मुआवनत पर तवज्जो मरकूज़ है। डिजिटल मईशत, तेज़ इंटरनेट और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग से कौमी IT सेक्टर में भी इनकलाबी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान 2030 तक 15 अरब डॉलर्स की IT बरामदात के हदफ के हुसूल की जानिब गामज़न है। भारत BJP के इक़्तिदार में हिंदू इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका। भारत में BJP, RSS और शिवसेना जैसी तंजीमों के जरिए हिंदुत्व नजरिए का राज है। हिंदुत्व एक सियासी मंसूबा है जिसका मकसद अक्सरियती हिंदू राष्ट्र की तश्कील है। भारतीय वेबसाइट स्क्रोल इन ने हिंदुत्व और सहूनियत में मुमासलत पर आज़ाद ईसा की किताब का तज्जिया जारी कर दिया। स्क्रोल इन के मुताबिक पहली जंग अजीम के बाद सहूनी तहरीक ने फ़लस्तीन पर कब्जे की बुनियाद रखी। हिंदू कौम परस्तों ने यूरोपीय फैशिज्म और सहूनियत दोनों की हिमायत की। भारतीय वेबसाइट का कहना है कि हिंदुत्व और सहूनियत 2 कदीम तहजीबों के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाते हैं। इनका मुश्तरका मकसद दूसरे मज़ाहिब की शिनाख्त को मिटाना और एक कौम बनाना है। आज़ाद ईसा की किताब के मुताबिक हिंदुत्व के बानी सावरकर ने 1939 में मुसलमानों को हिंदुस्तान का यहूदी करार दिया था। मोदी सरकार ने सहूनियत के तहत फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी और शहरियत की मनसूखी को खूब सराहा। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी और हिंदू आबादकारों की रजिस्ट्रेशन इजरायली नेशन स्टेट कानून की तर्ज पर हैं। इजरायल और भारत में मुसलमान अक़लियतों को शहरियत से महरूम करने के लिए काले कानून बनाए जा रहे हैं। BJP के दौर में मुसलमानों के घरों को तजावुज़ात के नाम पर बुलडोज़र करना भारतीय रियासती पॉलिसी बन चुकी है।
शिवसेना ने मुंबई में मुसलमानों को रिहायशी सोसाइटियों से निकालने की भी मुनज़्ज़म मुहिम चला रखी है। आसाम में NRC के तहत मुसलमानों बिलखुसूस बंगालियों को शहरियत और हक के रायदही से महरूम किया गया। हिंदुत्व और सेहूनी नजरियात खित्ते की सलामती, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सालमियत के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। हिंदुत्व नजरिए की बुनियाद पर इंतखाबात के दौरान मुस्लिम मुखालिफ तकारीर करके वोट हासिल करना भी बीजेपी का एजेंडा है। हिंदुत्व का नया निशाना अब अक़लियतें नहीं, बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स भी गैर महफूज हो गए हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुत्व कारकुनों ने मारूफ आलमी फास्ट फूड चेन KFC पर धावा बोल दिया। भलवाइयों ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कर दी। अमला खौफजदा और इब्लाग को नुकसान पहुंचाया गया। मारूफ स्कॉलर अशोक स्वैन ने मुल्क में बढ़ते हिंदू इंतहा पसंदी पर सवाल उठा दिया है। मोदी राज में ये कोई पहला वाक़या नहीं, रियासती सरपरस्ती में नफरत, तशद्दुद और गुंडागर्दी का राज है, जिससे न सिर्फ अक़लियतें बल्कि अब आलमी सरमायाकारी भी गैर महफूज हो चुकी है। और नाज़रीन, वतन से मोहब्बत में जान निछावर करना पाक फौज के जवानों की पहचान। जुलाई 2020 को ऑपरेशन अलमिज़ान के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही तसव्वुर इकबाल शहीद की 5वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सिपाही तसव्वुर इकबाल शहीद का ताल्लुक जिला खुशाब से है। उन्होंने मादर वतन की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिपाही तसव्वुर इकबाल शहीद ने दुश्मन के सामने सीना सपर होकर आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया। कौम सिपाही तसव्वुर शहीद के जज्बा कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। उनकी कुर्बानी आने वाले नस्लों के लिए मशाल राह है। और ISPR समर इंटर्नशिप 2025 के तलबा ने यादगार शहदा का दौरा करके फूल चढ़ाए और दुआ की। तलबा की नम आंखों ने अकीदत के दीप जलाए। इंटर्नशिप के तलबा ने वतन के जानिसारों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हमारे शहदा हमारा फ़ख्र हैं और हम अपने शहदा को कभी नहीं भूल सकते। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। उन्होंने कहा कि यादगार शहदा सिर्फ संगे मरमर और पत्थरों से नहीं बनाई गई, बल्कि हमारे शहदा के खून से बनाई गई है। तलबा ने आर्मी म्यूजियम और इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का भी दौरा किया। म्यूजियम में रखे नायाब और तारीखी हथियार और आलात देखकर तलबा महसूस हुए। इस मौके पर तलबा का कहना था कि पाक फौज अवाम से है और अवाम पाक फौज से। ऐसे जिंदों में हूँ मैं, हूँ जिंदा मगर ऐसे जिंदों में हूँ तेरी रखवालियों पर जो मारे गए, तेरी रखवालियों पर जो मारे गए। सर तेरी वफाकी वजीर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम ने दियामिर में फ्रंटियर कोर के जवान मोहम्मद गुलशेर की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शहीद मोहम्मद गुलशेर ने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान की। कौम उनके इस हसीम जज्बे को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने IG गिलगित बल्तिस्तान और मुतालिका हुक्काम को सख्ती से हिदायत की कि मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। इंजीनियर अमीर मकाम ने शहीद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंदी दरजात की दुआ की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और बारिशों से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना किया। मज़ीद तफसील देखिए वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में।
عوام مشکل میں ہو تو عوامی قیادت ان سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف چکوال میں بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خود پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تکیہ شاہ مراد، امیر پور منگن لنیانی اور دیگر مقامات کا فضائی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چکوال کو جہلم سے منسلک کرنے والے ڈھمن برج کا بھی فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے متاثرہ روڈز کی تعمیر و بحالی کا مشاہدہ کیا اور سیلابی پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا۔ چکوال ڈی سی آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں سول ڈیفنس فورس کو دوبارہ پوری طرح فعال کرنے کا حکم دیا اور رضاکاروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکان خالی کرانے اور مکین خاندان کو ریلیف کیمپ یا سرکاری عمارتوں میں قیام کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈھمن پل کو جلد سے جلد ٹریفک کے لیے کھولنے کا حکم دیا، جبکہ چکوال کو جہلم سے لنک کرنے والے پل سمیت چکوال کے دیگر 6 برج اور روڈز کی تعمیر و مرمت جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بارشوں کے دوران چھتیں گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے اور تودہ گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے فی کس مالی امداد دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، تاہم حکومتی اداروں کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ننکانہ صاحب میں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تمام شہری نشیبی علاقوں سے بارش کے اخراج کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق ضلع کے 5 مقامات پر نہروں میں پڑنے والے شگافوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع ننکانہ صاحب کی حدود سے گزرنے والے سیم نالوں کا پانی 3 مقامات سے اوور فلو ہوا، جس سے پانی قریبی فصلوں میں داخل ہوا۔ نالے کے پشتوں اور بندوں کو مضبوط کر دیا گیا ہے۔ تمام روڈز کو مرمت کے بعد بحال کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بارش سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اور منڈی بہاؤالدین میں ہونے والی طوفانی بارش سے جیل کی حفاظتی دیواریں گرنے سے بارشی پانی ڈسٹرکٹ جیل کے اندر داخل ہو گیا۔ 800 سے زیادہ قیدیوں کو سینٹرل جیل لاہور اور ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد شفٹ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کمشنر گجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی نے طوفانی بارش کے بعد ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں قیدیوں اور جیل انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا تھا، جس پر تمام قیدیوں اور حوالاتیوں کو لاہور اور حافظ آباد کی جیلوں میں شفٹ کیا گیا۔ حالات بہتر ہوتے ہی تمام قیدیوں کو واپس ڈسٹرکٹ جیل منڈی بہاؤالدین منتقل کر دیا جائے گا۔ اور ضلع گانچے کے سب ڈویژن مشابروم میں حالیہ طغیانی اور دریائی کٹاؤ کے باعث کھڑی فصلوں اور پھلدار اور غیر پھلدار درختوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہلدی نالے میں آنے والی طغیانی سے کھڑی فصلیں، پھلدار اور غیر پھلدار درخت شدید متاثر ہوئے ہیں، جبکہ نالے کے کنارے بنائے گئے حفاظتی بند بھی تیز بہاؤ میں بہہ گئے، جس سے قریبی آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ تلس گاؤں میں دریائی کٹاؤ کے باعث زرعی زمینیں متاثر ہو گئی ہیں۔ مقامی آبادی اپنی مدد آب کے تحت حفاظتی اقدامات کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ سینوں اور تھگس نالوں میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جس کے باعث ان علاقوں میں بھی شدید خوف اور ہراس پھیل چکا ہے۔ ادھر خپلو کے گاؤں ہیپی میں حالیہ بارش کے باعث 2 منزلہ رہائشی مکان گر گیا، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 بچے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ خاتون کو RHQ ہسپتال سکردو ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، رخ کریں گے پسرور کا۔ حالیہ بارشوں کے سلسلے کے دوران پسرور کے قریبی ندی نالوں میں سیلابی پانی میں اضافے کے بعد نالہ ڈیک اور نالہ ہسری میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پسرور کے برساتی نالہ ڈیک کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے نمائندہ PTV نیوز رانا قیصر حیات۔ جی رانا قیصر حیات، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پسرور میں حالیہ بارشوں کے بعد نالہ ڈیک اور نالہ ہسری میں جو سیلابی پانی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، اب جو موجودہ صورتحال ہے نالہ ڈیک کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے اور پانی کی سطح بالکل نارمل ہو چکی ہے، جبکہ اگر جو مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس برساتی نالے میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے، جس سے نشیبی دیہات والے، رپوولی، اسکندرپور اور دیگر درجنوں دیہات گزشتہ سالوں کی طرح زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات بھی دی جا چکی ہیں۔ جی
اور بارشوں کے بعد فیصل آباد کے موسم میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ حبس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں حافظ محمد علی عابد سے۔ جی حافظ محمد علی عابد، فیصل آباد میں موسم کی کیا کیفیت ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی فیصل آباد میں بھی بارشوں کے بعد موسم کھل گیا ہے اور آج سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جس کے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے اور ہوا 6 ناٹس پر آور پر چل رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق جب ہوا میں نمی کا تناسب 50% سے بڑھ جاتا ہے اور ہوا کی رفتار جو ہے وہ 8 ناٹ سے کم رہتی ہے تو حبس ہوتا ہے، اور اب بھی حبس کافی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اسی طرح کا موسم اگلے 2 دن رہے گا۔ 2 دن کے بعد بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا اور وہ موسلادھار بارشیں ہوں گی، اگلے ہفتے کے شروع تک جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اور پنجاب کے جنوبی شہروں ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں خواجہ محمد کلیم سے۔ جی خواجہ محمد کلیم، پنجاب کے جنوبی علاقوں میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور کیا صورتحال رہے گی؟ جی ملک کے بالائی علاقوں میں تو بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن ملتان میں جو پچھلا سپیل تھا مونسون کا، اس میں ایک اچھی بارش تو ہوئی، لیکن یہ شدید بارش نہیں تھی جس طرح کے ملک کے بالائی علاقوں میں ہوئی، اور اس بارش کی فصلوں پر، خاص طور پر کپاس اور چارہ جات کی فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور ڈویژن میں کم از کم درجہ حرارت 29 سے 30 اور زیادہ سے زیادہ 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک یہی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور تینوں ڈویژن جو ہیں جنوبی پنجاب کے، ان میں بارش ہونے کی توقع نہیں ہے۔ گو کہ ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور جو پنجاب کے جنوبی علاقے ہیں، ان میں آج ہوا بھی چل رہی ہے، ہلکی ہوا چل رہی ہے اور آسمان پہ بادلوں کی ٹکڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہاں ان علاقوں میں بارش کی توقع نہیں ہے۔ ملک بھر کی طرح مونسون بارشوں کا سلسلہ سندھ میں بھی جاری ہے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سجاول، لاڑکانہ سمیت دوسرے شہروں میں گزشتہ شب سے بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت ان شہروں میں کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے شیراز علی ڈاہری حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں، اور گزشتہ شب سے لے کے یہاں بھی بادلوں کا راج تھا، اور اس وقت بھی موسم جو ہے بہت ہی خوشگوار اور بارش ہونے کے مزید امکانات ہیں۔ جو رات بارش ہوئی ہے صبح 6 سے لے کے جو فجر کے ٹائم پہ حیدرآباد میں، اس میں 21 ملی میٹر جو ہے مختلف علاقوں میں بارش حیدرآباد کے ریکارڈ کی گئی، جس میں قاسم آباد، لطیف آباد، گلستان سجاد، شہری ایریاز، رورل، ٹنڈو جام اور جام شوروں کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس وقت نشیبی علاقے زیر آب ہیں، جبکہ شہر کی مختلف جو اوپر سطح کے جو علاقے ہیں وہاں پہ پانی موجود نہیں، جس میں مارکیٹ ایریا، ٹنڈو ولی محمد اور جو دیگر ایریاز شامل ہیں، جبکہ جو نشیبی علاقے ہیں ریلوے کالونی، لیاقت کالونی، لطیف آباد 2 نمبر کے علاقے، وہاں پہ اس وقت بھی پانی جو ہے وہ بارش کا موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو یہ اسپیل ہے یہ آج شام تک جو ہے موجود رہے گا، جو کہ حیدرآباد کی ڈویژن ہے، میرپور خاص ڈویژن ہے اور لاڑکانہ ڈویژن میں بارش ہونے کے مزید امکانات ہیں۔ جی صورتحال کیسی؟ مظفر آباد میں موجود اپنے نمائندے عدیل احمد خان سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا کشمیر کا موسم کیسا ہے اور محکمہ موسمیات کیا کہتا ہے کہ مزید موسم کیسا رہے گا؟ جی آزاد کشمیر میں جو گزشتہ سپیل تھا 14 سے 17 جولائی تک کا، اس لحاظ سے بڑا مفید رہا کہ ہلکی بارش تھی لیکن مسلسل تھی اور زمین میں جذب ہونے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوران یہاں پر جو لینڈ سلائیڈنگ اور دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی اور فلیش فلڈز کے جو خدشات تھے وہ ٹل گئے، لیکن ابھی جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک بار پھر پیش گوئی کی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں آج یعنی 20 جولائی سے بادلوں کا نیا سلسلہ داخل ہو رہا ہے، جو باعث بنے گا آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک، آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور انتظامیہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ شہری خراب موسم کے دوران ندی نالوں سے دور رہیں، دریاؤں سے دور رہیں، اور بالخصوص جو پہاڑی علاقوں میں بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ ابھی کی میں آپ کو صورتحال بتاتا چلوں کہ ابھی میں گڑی دوپٹہ کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ میرے عقب میں آپ جو پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ان پر بادل گھر کر آ رہے ہیں، اور یہ
हल्की बारिश है और हल्की हवा चल रही है और उम्मीद की जा सकती है, अमकान है कि बारिश का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। ज़िला ओकाड़ा में बारिशों के तीसरे स्पेल में मजमूई तौर पर 280 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों के हालिया सिलसिले ने चावल और कपास की फसल को मुतासिर किया है, जिससे कपास और चावल की पैदावार में कमी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ इस वक्त चावल के मुतासिरा खेतों में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जिला उकाड़ा में इस साल 18,000 एकड़ रकबे पर कपास और 3,50,000 एकड़ रकबे पर चावल की फसल काश्त की गई है, जबकि मकई की फसल की बुआई के लिए ज़मीन की तैयारी का अमल जारी है। हालिया मानसून की बारिशों ने जहां मौसम को खुशगवार किया है, वहां पर कपास और चावल की फसल को भी मुतासर किया है। 7 एकड़ रकबा था हमारा, जो कि मकई के लिए हमने तैयार किया था। डीजल का खर्चा और ट्रैक्टर का खर्चा और लेबर का खर्चा, बहुत ज़्यादा नुकसान। हालिया तेज़ हवाओं और बारिशों की वजह से कपास और चावल की फसल को नुकसान पहुंचा है, जैसे कपास और चावल की पैदावार में कमी के इम्कानात पैदा हो गए हैं। कपास के खेतों में जहां पानी खड़ा हो गया वहां निकासी का इंतज़ाम करें और बीमारियों के खिलाफ महकमा ज़राअत के अमले के मशवरे से वहां पे स्प्रे करें। और धान की फसल जहां पे पानी की वजह से डूब गई है वहां नई पनीरी से वहां दोबारा काश्त की जा सकती है। शदीद बारिशों से जहाँ कपास और चावल की फसल को नुकसान पहुँचा है, वहीं पर मकई की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी बर वक्त ना होने से मकई की पैदावार भी मुतासर होने का अंदेशा है। ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करके बारिशों से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान में कमी लाई जा सकती है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ओकाड़ा। और शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज शहर में कुछ मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुहेल जमाली। जी सुहेल जमाली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शहर कायद में मौसम आज भी गर्म और मरतूब है। सुबह से धूप और बादलों की आंख मचोली जारी है। शहर में हब्स की कैफियत बरकरार है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हवा में नमी का तनासुब 65% होने के बाइस गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री महसूस की जा रही है। आज सुबह में फजर से कुछ पहले थोड़ी देर के लिए कराची में दरमियानी बारिश हुई थी, जिसके बाइस मौसम थोड़ी देर के लिए खुशगवार हुआ, मगर उसके बाद फिर हब्स की कैफियत बरकरार हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में दोपहर के बाद कहीं हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ सिंध के साहिली अजला में ठट्टा, बदीन और सजावल में सिंध में सबसे ज़्यादा बारिश 68 मिलीमीटर बदीन में हुई है, जो साहिली ज़िला है। कल से उसके ऊपर बादल छाए हुए थे। इस वक्त भी ठट्टा और सजावल में रात से हर थोड़ी देर के वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बादलों का यह सिलसिला सिंध के साहिली अजला को ढांपे रहेगा और आज रात तक वहाँ मुख्तलिफ औक़ात में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। जी बहुत शुक्रिया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जहां मुल्क के दूसरे सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाके मानसून बारिशों से शदीद मुतासर हो रहे हैं, वहां सूबा बलूचिस्तान में तारीख की शदीद तरीन गर्मी की लहर और खुश्क साली जारी है। मज़ीद तफसीलात कोयटा से मीर सलाम जोगज़ई से। जी मीर सलाम, आगाह कीजिएगा। जी, सूबा बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी और खुशहाली का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता साल मौसम सरमा में भी मामूल से कम बारिशें हुई, जिससे सूबा बलूचिस्तान के जो मेन शोबाजात है, जिस तरह लाइव स्टॉक और ज़राअत पर इसके शदीद मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जबकि ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में भी नुमाया कमी वाक़या हो रही। और सूबे बलूचिस्तान के बड़े डैम जिस तरह मेरानी केश, तुरबत डैम, हब डैम, सबकजी जोब डैम में भी, जबकि इन डैमों में भी पानी में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है, जिससे यहाँ के ज़राअत के शोबे पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जबकि सूबे के निस्बतन ठंडे इलाके जिस तरह कोयटा, ज़ियारत, कला, तोबा, चकजी, कान में तर्जी में भी मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है महसूस किया जा रहा है। जी। और स्कर्दू कुदरती हुस्न से माला माल इन दिनों न सिर्फ मुल्क भर से बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बैनुल-अक़वामी सयाह यहाँ के फलक बोस पहाड़ों, नीलगू झीलों और ठंडी वादियों को देख कर हैरत ज़दा हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान का हसीन तरीन ज़िला स्कर्दू इन दिनों मुल्क भर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले सयाहों से भर गया है। कोई पैमाई के जज्बे के तहत
K2 और ब्रॉड पीक की जानिब रवां दवा हैं तो कोई हसीन वादियों में ट्रैकिंग, हाइकिंग और फोटोग्राफी के जरिए कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि स्कर्दू कुदरत का एक छुपा हुआ ख़जाना है। यहाँ की फ़ज़ा में एक रूहानी सुकून है जो दुनिया के किसी और कोने में महसूस नहीं होता। From Australia to hike in the Karakoram Mountains and see what Pakistan is all about. My name is Robin. I'm from America, and I have to say the countryside and people of Pakistan and Skardu are absolutely stunning. My name is Jenna. I'm from America, and I have to say when the plane landed here in Skardu, I got off and looked around and I thought, oh my gosh, I'm on a movie set. It's so gorgeous and like nothing we have in America. My name's Kat and I'm from Scotland, and it has been an absolute pleasure to visit your beautiful city and country. Hello, I'm Tim. I'm from England and I'm enjoying my time in Pakistan. It's a wonderful country. I'm Daniel. I'm from England, and everyone from my country who's told me they've been to Pakistan talks about how friendly the people are. I've only been here for about a day and a half, but I totally agree. मुल्क भर से आने वाले सयाह यहाँ के मुतदिल मौसम, कुदरती मनाजिर, फलकबोस पहाड़ों, नीलगुण झीलों और ठंडी हवाओं से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शंग्रेला, सतपारा, द्योसाई, शिगर और खपलू जैसे मकामात पर सयाहों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। स्कर्दू आके देखेंगे तो आपको तकरीबन पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीजें मिलेंगी। लोग कहते हैं कि स्कर्दू जन्नत का टुकड़ा है, और वाकई सच कहते हैं। स्कर्दू इस वक्त न सिर्फ एक नुमाया सयाहती मकाम बन चुका है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के कुदरती विरसे की हकीकी नुमाइंदगी भी कर रहा है। मोहम्मद इमरान, PTV न्यूज़, स्कर्दू। और रावल डैम इस्लामाबाद में पानी की सतह में इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवे गेट्स खोल दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान। जी, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के रावल डैम पर मौजूद हूँ। हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुल्क भर में पानी के ज़खायर में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद के रावल डैम में भी मानसून बारिशों से पानी की सतह बुलंद हुई है, जिसके बाद इंतजामिया ने स्पिलवेज खोल दिए हैं। रवां मानसून सीजन के दौरान रावल डैम में पानी की सतह में 12 फीट इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डैम में पानी की सतह 1748 फीट से ज़्यादा हो गई। डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट है। ज़िली इंतज़ामिया और रावल डैम हकाम ने स्पिलवेज खोलने से पहले मुल्हिका आबादियों और मोहल्लों में ऐलानात कराए ताकि हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। NDMA और डैम हकाम के मुताबिक डैम और स्पिलवे के करीबी इलाकों में रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी कीमती इमलाक और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। अवाम को डैम से मुल्हिका इलाकों में गैर ज़रूरी आमदोरफ्त, फोटोग्राफी, तफरी और माहीगीरों से मना किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र मुकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 से रब्ता करने की हिदायत की गई है। जी, पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू हो रहा है, जो 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम की ताज़ा सूरत हाल और दरियाओं में पानी के बहाव के बारे में जानने के लिए हमने राबिता किया है लाहौर में अपने नुमाइंदे मौज़िमुद्दीन से। जी मौज़म। जी बिल्कुल, पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, और आज से पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है, जो कि 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 रहने की पेशनगोई की गई है। हब्स की कैफियत बरकरार है, हवा में नमी का तनासुब 66% है। अगर मैं बारिशों की बात करूँ तो PDMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई तक पंजाब में चौथा स्पेल जो है जारी रहेगा, जिसके चलते हुए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है बारिशें और आंधी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के ऊपर सूबे भर में जो मशीनरी है वो पहुंचा दी गई है, जबकि जो अमला है वो भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बारिशों के बायस जो दरियाओं और नदी नालों में पानी में जो है वो इजाफा हो रहा है, और PDMA के मुताबिक 21 जुलाई से दरियाए रावी, जेलम, सतलुज, चिनाब के बहाव में पानी के इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि दरियाओं के बलाई इलाकों में मानसून बारिशों के बायस जो पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का जो खर्चा है वो देखने में सामने आ रहा है। PDMA के कंट्रोल रूम से लम्हा ब लम्हा तमाम मौसम की बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। PDMA है उसने अलर्ट जारी किया हुआ है, तमाम मुतलका जो महकमे हैं वो हाई अलर्ट है वज़ीर आला के हुक्म के ऊपर। तो मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो आज चौथा स्पेल जो है वो आज से शुरू हो रहा है और ये 25 जुलाई तक जारी रहेगा। जी,
आपको आगाह करेंगे, गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर सेहूनी फोर्सेस के फजाई और ज़मीनी हमले जारी हैं, जिसमें 116 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में खुराक के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि कई मुतासरीन अब भी मलबे और सड़कों पर मौजूद हैं, जहाँ इमदादी और शहरी दिफाई अमला अब तक उन तक पहुँचने से कासिर है। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 58,765 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,40,485 तक पहुँच गई है। उन्होंने बताया कि जंगी कश्तियों ने गजा बहरी बंदरगाह पर समुद्र के अंदर माहीगीरों पर शदीद फायरिंग किया और उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया। तल अवीव में इसराइली जरगमालियों के अहल खाना ने अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो जंग बंदी और जरगमालियों की रहाई के हवाले से मुआहदा करने में मदद करें। दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। हमास का कहना है कि उसने जंग बंदी मुआहदे की पेशकश की थी, जिसके तहत तमाम जरगमालियों की रहाई मुमकिन थी, ताहम इसराइल ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हमास का कहना है कि अगर मुआहदा न हुआ तो वो तवील जंग के लिए तैयार है। उधर यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, जिससे तल अवीव के बिन गुरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। मिसाइल दागे जाने के बाद इसराइल के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले के सायरन बच गए, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। रुकन कौमी असम्बली मेंबर सुप्रीम जुडिशल कमीशन शेख आफ्ताब अहमद ने कहा है कि मुल्क की तमाम तर तरक्की का सेहरा मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के सर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने करोड़ों रुपए लागत से 2.25 किलोमीटर तामीर और बहाली कारपेट रोड, फिश पॉइंट, कामरा, ताहाजी चौक, हाजी शाह रोड के संग बुनियाद के मौके पर मस्जिद हैदर करार में बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आम शहरी की ज़िंदगी की तमाम सहूलियात की फराहमी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है और उनकी हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। मरी के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर बरसों से वीरान पड़े सामली अस्पताल को जनरल अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस अस्पताल में पहला कार्डियोलॉजी यूनिट भी कायम किया गया है। मजीद तफसील बताएंगे यासिर वकार शाह। अस्पताल सैयद मोहम्मद हुसैन टीबी सेंटोरियम शामली को 360 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तरीन जनरल एंड टीबी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा उन्होंने अप्रैल 2024 में यहाँ पे जो विजिट किया और यहाँ के विजिट के बाद जब अस्पताल के हालात को देखा तो उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि इस अंडर यूटिलाइज्ड हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। अस्पताल में मरीजों के लिए इमरजेंसी ब्लॉक, पहला कार्डियोलॉजी यूनिट, जनरल वार्ड, लैब, प्राइवेट रूम्स, जदीद तरीन मशीनरी, तरबियत याफ्ता अमला समेत तमाम तर तिबी सहूलियात फराहम की गई हैं। नवाज की काविशों से यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले हमें इलाज के लिए पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ता था। जब से हॉस्पिटल जनरल हुआ है, इधर तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमें मेडिसिन वगैरह लेने नहीं जाना पड़ता। जनरल अस्पताल के कयाम से मलका कौसार, मरी, उटनी सतिया के शहरियों को इनकी दहलीज पर ही इलाज मुआवजे की मेयारी सहूलियात दस्तयाब होंगी। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता जनरल अस्पताल का कयाम मरी के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज़, मरी। रुकन कौमी असम्बली इरम हामिद हमीद ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। इस हवाले से आसिफ हनीफ की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात कोशा है। सरगोदा की आवाम का दरीना मुतालबा दिल के अस्पताल का था, जिसकी अमली ताबीर मौजूदा हुकूमत ने दी। शहीनों के शहर सरगोदा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क्याम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क्याम से रोजाना हजारों मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा इरम हामिद ने इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की इयादत की और उन्होंने अस्पताल के तामीराती मेयार और तेज से जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। सीएम पंजाब की तरफ से हमारे लिए सरगोदा शहर के लिए एक गिफ्ट है। पेशेंट थे, उनसे भी मैंने पूछा, फ्री अदवात, फ्री मेडिसिन उनको दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। 19 अरब रुपए की ग्रांट से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पाकिस्तान का जदीद तरीन दिल का अस्पताल देना एक इनकलाबी कदम है। MLA इरम हामिद ने सरगोदा की अवाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। आसिफ हनीफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सरगोदा।
और नाज़रीन, जदीद दौर की चकाचौंध सोशल मीडिया की भीड़ और मसनूई राबतों के इस ज़माने में जब दिलों का मेल कम और तन्हाई का एहसास बढ़ चुका है, ऐसे में हमारे सीनियर फनकारों ने एक खूबसूरत रिवायत को जिंदा करने का अज़्म किया है। वो फनकार जो जिंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा रह गए, जिनके दरो दीवार खामोशी से हम कलाम हैं, उन्हें अब अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह कदम सिर्फ रफाकत नहीं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और फ़न के अनमोल रिश्ते का ऐलान है। क्या तफसीलात हैं, बता रही हैं फरहाना खान। हमारी मुआशरती रिवायात और इक़दार में हमसाए को माँ जाया करार दिया जाता है, लेकिन इसे मुआशरती और समाजी बेहिसी कहें या सितम ज़रीफ़ी के तवील अरसे तक फ़न की खिदमत करने वाली आयशा खान तन्हाई के आलम में चल बसी, तो नौजवान अदाकारा हुमैरा असगर भी इसी समाजी बेइतनाई का शिकार हुई और इर्द गिर्द किसी को खबर तक न हो सकी। ऐसे में हसास दिल रखने वाले सीनियर आर्टिस्ट कैसे खामोश रह सकते थे? लैला जुबैरी और तौसीक हैदर बारिश का पहला कतरा बनकर सामने आए और फनकारों के लिए कायम तंजीम एक्ट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फैसला किया कि जहां ये तंजीम माली मुश्किलात में फनकारों की दाद रसी करेगी, वहीं ये अहद किया गया कि अकेले रहने वाले फनकारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनकी खबरगिरी की जाएगी, क्योंकि माली मुआविनत तो हुकूमत भी अपने फनकारों की कर लेती है, लेकिन इंसान का इंसान से रिश्ता और ताल्लुक तब मजबूत होता है जब सब आपस में मिलें जुलें, महफिलों का इनेकाद हो, क्योंकि इंसान की ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के लिए बाहमी मेल जोल बहुत अहम है। मिलने जुलने से ही सब एक दूसरे के मसाइल और परेशानियों से आगाह होते हैं। मैं इसका बेड़ा उठा रही हूँ, इस जिम्मेदारी का, और अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने उन तमाम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ कि हम सब जहाँ पर इकट्ठे हो सकें, एक दूसरे की खबर रख सकें, एक दूसरे का ख्याल रख सकें, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह हैं, एक कम्युनिटी है। अगर किसी की कोई फैमिली नहीं भी पूछती तो वो हमें अपना फैमिली समझे। यहाँ पे लैला और तौसीक ने सबको इकट्ठा किया है और इस बात पे सब मुत्तफिक हुए हैं कि कभी तन्हा किसी को नहीं होने देना। मैं ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा सीनियर और नए आने वाले अदाकार अदाकाराओं हर तरह के आर्टिस्ट को कि वो एक्ट पाकिस्तान का ज़रूर मेंबर बने, इसलिए कि उसके अंदर वो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है, आपके राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, उसके लिए एक्ट पाकिस्तान उसको इंश्योर करता है, उसके लिए काम करता है। एक्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में आयशा खान और हुमैरा असगर की याद में दुआई तकरीब का खसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें फिल्म, ड्रामा और न्यूज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, मरहूम अदाकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और इस अज़्म का इजहार किया कि सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुआशरे में लोगों के बाहमी ताल्लुकात की मजबूती में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खेल में कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज ढाका में हो रहा है। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानिए ज़ीशान क़य्यूम की रिपोर्ट में। तकरीबन 1.5 माह के वक्फे के बाद पाकिस्तानी शाहीन एक मर्तबा फिर एक्शन में आने को हैं तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे 3 मैचेस की T20 सीरीज में आमने सामने। Good shot, I think, yes, just over the top. ग्रीन शर्ट्स सलमान अली आगा की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। Pick up. That is magnificent. लिटन दास बांग्लादेश की कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। Out of the middle, has it gone far enough? Yeah, just. शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका में होने वाली सीरीज की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस की और कंडीशन से वाकिफ होने के लिए मशकें की। T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 22 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 19 में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश सिर्फ 3 मुकाबले जीत सका। शेरे बंगला स्टेडियम में दोनों टीमें 7 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने 5 मुकाबले अपने नाम किए। बांग्लादेश 2 मैच जीतने में कामयाब रहा। सीरीज का दूसरा मैच 22 जुलाई को और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी।
आसाब शिकन फाइनल में पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन ईरान को 2 के मुकाबले में 3 सेट से मात दी। मुजीबुल हक रिपोर्ट करेंगे। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। पाकिस्तान पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन बन गया। थाईलैंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला दिफाई चैंपियन ईरान से हुआ। ईरानी टीम ने इब्तिदाई 2 सेट जीतकर बरतरी हासिल की। ईरान ने पहला सेट 25-22 और दूसरा सेट 25-21 से जीता। 2-0 के खसारे में रहने के बावजूद पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद रहे। तीसरा सेट पाकिस्तान ने 30-28 से जीतकर कम बैक किया। चौथा सेट पाकिस्तान ने 25-21 से जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। पांचवा और फैसलाकुन सेट पाकिस्तान ने 15-10 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला 2 घंटे और 7 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद ने 28, फैजान ने 22 और तलहा ने 9 पॉइंट्स स्कोर किए। कौमी अंडर 16 टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 की इबरतनाक शिकस्त से दुचार किया था। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को एशियन चैंपियन जीतने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने महारत और जज्बे से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कामयाबी टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और कोचेस की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पूरी कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ दे। इसी के साथ खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। शुक्रिया समीन। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त